Hello, a very good morning to all of you class, and today in this video we are going to continue our chapter 4, that is the age of industrialization. Okay, and today's date is 5 Feb 2021. Got it bacha? And day today is, that is Friday. In this video we are going to continue our chapter number 4, the age of industrialization. Okay, in this chapter we already studied about the globalization and the industrial revolution, that how the industries comes in the world and change the world. Okay bacha, in this chapter we studied about the proto industrialization system. Proto industrialization system. What is this beta? What do you know about the proto industrialization system? Proto industrialization system is a time period which is known as, you can say that, before the revolution of the industries. Okay, it is the era before the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो इंडस्ट्रीज की रेवोल्यूशन उसका जस्ट पहले का टाइम जो आपका है वो किसके नाम से फेमस है? दैट इज नोन एज योर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम. Clear to everyone? This topic we already studied. Now our topic is that proto industrialization system as a. Now in this video we will study that proto industrialization system, proto-industrialization system as a system of commercial exchange, as a system of commercial exchange. Beta, here in this topic, I want to tell you about the proto-industrialization system as a system of commercial exchange. It means ये time period proto-industrial system क्या है? Just the time just before the revolution of the industries. ओके, इंडस्ट्रीज के रेवोल्यूशन से जो पहले का जस्ट पहले का टाइम है वो आपके इस नाम से फेमस है. और देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज क्या होता है? जब हम एक चीज दूसरे के साथ क्या करते हैं? चेंज करते हैं. अपनी हेल्प के मतलब अपने लिए जो अपने नीड्स की चीजें हैं वो दूसरों से लेते हैं और दूसरे की नीड की जो चीजें हैं वो क्या करते हैं? उसको देते हैं. इट मीन द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेकन. जो गिव एंड टेक करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, दैट इज द एक्सचेंज सिस्टम एंड द कमर्शियल एक्सचेंज. मतलब क्या है बेटा कि इंडस्ट्रीज क्या आ रही है? इंडस्ट्रीज बन रही है मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है. तो उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स की नीड होती है, बहुत सारे लेबर की नीड होती है, बहुत मतलब लैंड की नीड होती है, रॉ मटेरियल की नीड होती है. तो उससे क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना, पब्लिक मतलब पीपल का, लेबर का, मनी का, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से टूल्स का, रॉ मटेरियल का. क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस दैट हाउ द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज, बिकॉज in that time period we exchange many things like the raw material, tools of the machines, techniques, views and ideas. Okay, the proto-industrial system was a network of commercial exchange. It was controlled by the merchants. Who control the system of commercial exchange? Merchants. बेटा merchants क्या करते थे? जैसे मैंने आपको बताया जो merchants होते हैं वो क्या करते हैं? जो इंटरमीडिएटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट्स क्या होते हैं, व्यापारी जो क्या करते थे, बच्चा जब उसको कोई इंडस्ट्री सेट करनी होती थी,
when a person wants to set their industry and that person requires that many things like the raw material, labor and the any other things. There are many factors which are responsible, which are important to the setup of a industry, है ना. अब यहाँ पे क्या है कि उसका गिव एंड टेक करना, लेन देन करना, या फिर कहाँ से वो चीज आएगी, कितने पैसे में आएगी, ये सब वर्क किसका होता था, मर्चेंट्स का होता था. इट मीन्स यू कैन से दैट द मर्चेंट्स हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ द कमर्शियल एक्सचेंज. Okay, income from proto-industrial production supplemented peasants' income from cultivation. A merchant clothier is England first purchased wool from a wool stapler and supplied it to the spinners. The thread that was spun was taken in different stages to production, to weavers, fullers, and then to dryers. It means, and this is telling to you the procedure of a fiber. That how a particular fiber made up, कि कैसे एक फाइबर बनता है. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं थ्रेड का, ठीक है. थ्रेड कैसे बनता है, पहले उसको क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल उसको लेके आते हैं, फिर उसकी कार्डनिंग करते हैं, फिर उसको रोलिंग करते हैं, आफ्टर देन उसको क्या करते हैं, स्पिन करते हैं. तो ये क्या है, प्रोसीजर है. तो ये सारा हैंडल करने का काम किसका था बेटा, मर्चेंट्स का. ठीक है, वो देखते थे कि इस वर्क में कितना पैसा लग रहा है और उसको स्टेप बाय स्टेप कितना पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्लियर टू एवरीवन अबाउट द मर्चेंट्स and the all profit is taken by the merchants. Okay, the finished product passed through several stages and reached the market on the of the London. Gradually, London came to be known as finishing center. You have to know about that, is very important question. According to one mark question, that what is the which place is famous as a finishing center in the 17th century? Which beta? That London was known as the finishing center. London was known as the finishing center London was known the finishing center at that time. Why so bacha? Because at that time, after becoming the after making the final product, all these products are sent to the London, and that place we can sell our product in the market. Got it बच्चा? कि जितने भी प्रोडक्ट से मतलब उसका हर एक काम, जैसे फाइबर को क्या करना है, कार्डनिंग करनी है, पहले उसकी रोलिंग करनी है, उसके बाद स्पिन करना है, डाई करनी है, उसका बाद जो भी मतलब एक जब वो प्रॉपर थ्रेड बन जाता है, उसको एक फाइनल क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट वो बन जाता है, उसको सेल करने के लिए कहाँ सेंड कर दिया जाता है, लंदन. ठीक है, आफ्टर द लंदन वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट इन एनी स्टेट्स, एनी रीजन, एनी एरिया. गॉट इट बच्चा? सो एट दैट टाइम द लंदन वाज नोन एज ए फिनिशिंग सेंटर. ओके, at each stage of production 20 to 25 members were employed by each merchant. क्लियर टू वन? जैसे क्लियर टू एवरीवन बच्चा? जैसे मर्चेंट्स था, मर्चेंट क्या करता था, मर्चेंट कंट्रोल एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट की, जैसे एक बिजनेसमैन क्या हो, मर्चेंट क्या होता है बेटा, ठीक है, एक व्यापारी होता है ना. सेम थिंग जैसे एक बिजनेसमैन होता है एट प्रेजेंट, जैसे आपका क्या होता है आज के टाइम में बिजनेसमैन होता है. बिजनेसमैन क्या करता है, उसका प्रॉफिट कहाँ से आता है, वो पहले तो ये देखता है कि रॉ मटेरियल कितने पैसे का आता है ना, लेबर पे कितना इन्वेस्ट होगा, और जो सेकंड थिंग है या अदर ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, कैपिटल्स है, अनदर कैपिटल्स है, तो सबकी इन्वेस्टमेंट को क्या करके कंबाइन करके उसके बाद उसको जितना प्रॉफिट चाहिए होता है उसको ऐड करके उसके बाद उसका एमआरपी रेट क्या करता है, फिक्स करता है. ठीक है, वो अकेला नहीं कर सकता ना ये सारी चीजें, तो वो अपने अंडर क्या करता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखता है ना. सो एट दैट टाइम द मर्चेंट, every one merchant, every and each
merchant having the 20 to 25 employers. For what beta? To control the work of the spinners, gardeners, है ना. तो इन सब के काम के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ पर कितना लॉस होगा, ये सारी चीज देखने के लिए उन्होंने क्या रखे हुए थे, लेबर्स रखी हुई थी, एम्प्लॉयज रखे हुए थे. ठीक है बच्चा. द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स इंस्टेड ऑफ factories. Now the coming up of a factories, now we will discuss the coming up of a factories, that how the factories come in the world for the production. Okay, so in this topic also your next topic is the coming up of the factories, कि कैसे factories आई. Before the coming of the factories, the mostly product was made by the family persons. ठीक है, जो आप डोमेस्टिक लेवल पे क्या करते हो, फैक्ट्रीज बना लेते हो, अपना बिजनेस सेटअप कर देते हो. उस टाइप से उस टाइम जैसे स्पिनिंग करते थे अपने हैंड से, हैंडलूम्स वगैरह होते थे. लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद क्या आनी शुरू हो गई, फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्ट्रीज, देन व्हेन द फैक्ट्रीज comes and what effect of the factories on the world trade. Got it bacha? The earliest factories in England come up by the 1730s. However, the number of the factories multiplied in the late 18th century. Cotton textile was the main industry at that time. It is very important point to you that firstly in the Britain, in the Europe, in mid of the 18th century, the industries factories come. Okay, but in the ending of the 18th century, it was on the top. वो क्या था, टॉप पे चली गई थी. उसके बाद क्या हो गया, आपकी जो कॉटन फैक्ट्रीज थी, फर्स्टली द कॉटन फैक्ट्रीज comes firstly the cotton factories comes in the Europe. Got it beta? And in the cotton factories, in the cotton textile industries, the Britain got the many profit, and with the help of the cotton factory, the Britain became a good economic country. Got it bacha? So at that time the cotton factory was the main important factory, was the main important industry at that time. Okay, a series of inventions in the 18th century increased the efficiency of each step of the production process, which included carding, twisting, spinning and rolling. अब ये बच्चा क्या होता है, जैसे जैसे हमें क्या हुआ, when we saw that with the help of the factories, with the help of the techniques, we can improve our production and get the money, get the profit. After that, the many inventors start their work, and with the help of their knowledge, they want to invent many steps, invent many machines. With the help of these machines, they can improve their techniques, and with the improved techniques, with the modern techniques, they can improve their industry system. Clear to everyone बच्चा? क्या है इसमें, क्या है बच्चा, देखो आपका टॉपिक नेम क्या है, द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज कैसे वर्ल्ड में आई. ठीक है, तो पहले क्या था, कॉटन फैक्ट्री. सबसे पहले कॉटन फैक्ट्री क्या आई थी, कॉटन फैक्ट्री जो कॉटन टेक्सटाइल है वो सबसे टॉप पे था, किसमें, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में. ठीक है, अब जब उन लोगों ने क्या देखा कि विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्रीज वी कैन इम्प्रूव, वी कैन एनकरेज आर वेल्थ, हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं. वी कैन अर्न द मनी, we can get the profit with the help of the techniques. Then why we are not improving our techniques. ठीक है, जो बिजनेसमैन थे उनको लगा कि जब हम टेक्निक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो क्यों ना लें.
तो उस टाइम पे उन लोगों ने अपने माइंड को क्या किया, शार्प किया और इन्वेंशंस करनी शुरू कर दी किस चीज को लेकर कि कौन सी टेक्निक्स ऐसी होगी जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेट कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? So Richard Arkwright is credited to create the cotton mill. So you have to write down, that is very important. What? Richard Arkwright. It is very important name in the history of the industries. Richard Arkwright is credited to create the cotton mill. Within the mill, all the process were carried out at one place. इनने जो रिचर्ड आर्कराइट था वो क्या था, वो फर्स्ट पर्सन ऐसा बना था जिसने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे ऐसी कॉटन मिल इस्टेब्लिश की जिसमें हर तरीके के काम को क्या किया जा सकता था, मतलब किया जा सकता था। ठीक है, जैसे बिफोर दैट पर्सन, बिफोर द आइडिया ऑफ दैट पर्सन, वी सेंड आवर थ्रेड, वी सेंड आवर फाइबर, वन प्लेस फॉर द रोलिंग, वन अनदर प्लेस फॉर द डाइंग एंड द अनदर प्लेस फॉर द स्पिनिंग, है ना। तो क्या है, पहले कार्डिंग करते थे उसकी, ठीक है, पहले कार्डिंग करते थे उस थ्रेड की या फाइबर की, उसके बाद दूसरे प्लेस पे उसको सेंड करते थे, ठीक है, उसके बाद उसको डाई करने के लिए सेंड करते थे, उसके स्पिन करने के, लेकिन ये प्रोसीजर था। तो इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन कौन था, रिचर्ड आर्कराइट ऐसा पर्सन था जिसने ऐसी फैक्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री सेट की जहां पे सारा का सारा वर्क एक ही फैक्ट्री में एक ही प्लेस पे क्या हो सके, एक ही प्लेस पे किया जा सके। क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस? Clear बच्चा? About the Richard Arkwright. After that, as I told you that many inventors comes in the world, and in the 19th century factory system increased largely in the England. तो बेटा सबसे पहले मतलब यूरोप में, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यूरोप में बहुत सारी मतलब इंडस्ट्री सेटअप की गई, लेकिन वो एक बहुत ही लो लेवल की या फिर डोमेस्टिक बिजनेस आप बोल सकते हो, ठीक है। बट इन द 19th century, in the 19th century, in the 19th century in Britain या in England, the many industries, the many factories or industries was set. ओके बच्चा, सबसे पहले कहाँ पे ये इंडस्ट्री से फैक्ट्री सेटअप की गई? सबसे ज्यादा जब लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री सेटअप की गई, वो कहाँ की गई थी? आपकी इंग्लैंड में, ठीक है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। योर नेक्स्ट टॉपिक इज द पेस ऑफ industrial change. Listen to me very carefully, bacha. In this topic we studied how for the industrialization वी स्टार्ट कमर्शियल एक्सचेंज, कि कैसे हमने आपकी जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन से उससे पहले अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए एक्सचेंज सिस्टम क्या किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज, की कैसे फैक्ट्रीज आई। अब पहले क्या था, फैक्ट्रीज नहीं थी, डोमेस्टिक लेवल पे छोटा मोटा बिजनेस होता था, फिर फैक्ट्रीज आ गई, इट मीन्स टेक्निक्स आ गई, मशीन्स आ गई। आफ्टर दैट इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। मतलब क्या था, जो छोटे लेवल पे फैक्ट्रीज बनाई थी, मतलब वहां पे लेबर होती थी, लेबर काम करती थी एक ही प्लेस पे, उसको सेंड करते थे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद, कहाँ, लंदन में। बट इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी दैट विच टाइप ऑफ चेंजेस कम्स इन द इंडस्ट्रीज इन द 19th centuries.
ओके कि जैसे जैसे हमने किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर फोकस किया और इंडस्ट्रीज में मतलब इंडस्ट्रीज की हेल्प से ज्यादा प्रॉफिट गेट। ओके बच्चा, सो द कॉटन एंड मेटल बिकेम द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो सबसे फेमस इंडस्ट्रीज थी वो दो थी। ब्रिटेन फोकस ऑन द टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी। फर्स्ट वन ऑफ द कॉटन, नेक्स्ट वन इज द मेटल। ये जो दो आपकी इंडस्ट्रीज थी कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर क्या ना ब्रिटेन ने फोकस किया एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉटन एंड द मेटल इंडस्ट्री ब्रिटेन improve their economic condition, improve their economic structure. Okay, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840s, followed by the iron and steel industries. Okay bacha, that you can say that in the starting of the industrialization the cotton textile industries was on the top. वो क्या थी, वो इंडस्ट्री जो आपकी सबसे हाई टॉप पे वर्क कर रही थी, बहुत अच्छा क्या कर रहे थे, उसमें हम फोकस कर रहे थे और उसकी हेल्प से अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे थे। ठीक है बच्चा, द न्यू मशीनरी एंड द इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्ले ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब बेटा क्या हुआ कि हमने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि क्या किया जाए कि न्यू थिंग्स को क्या किया जाए, न्यू टेक्निक्स को, न्यू जो आपकी थिंग्स है उनको क्या किया, मॉडर्न थिंग्स को क्या लाया जाए इंडस्ट्रीज। बट एज यू नो दैट एडोप्टेशन ऑफ द न्यू थिंग्स इज वेरी टफ। किसी भी चीज को, किसी भी नई चीज को एडोप्ट करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने क्या, इंडस्ट्रियलाइजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया बच्चा, मतलब वो इंडस्ट्रीज में क्या लेके आना चाहते थे, इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, न्यू टेक्निक की हेल्प से अपनी इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया। ठीक है, लेकिन उस टाइप उन लोगों को इतना ज्यादा उसका पॉजिटिव अफेक्ट नहीं मिला, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। वाई? बिकॉज 80% पीपल डजंट वांट्स टू लीव द ट्रेडिशंस। ठीक है, वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहा। ठीक है, सो you can say that at the end of the 19th century less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sector. Textile was a dynamic sector, but a large portion of the output was not produced within factories. More the textiles were primarily produced within domestic units. ठीक है बच्चा, अब ये क्या हुआ, इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट या एडॉप्ट मैनी न्यू मॉडर्न थिंग्स, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स। ओके, इन द फूड इंडस्ट्रीज। ओके बच्चा, फूड इंडस्ट्रीज जो आपकी है, मेटल इंडस्ट्रीज है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपना कुछ मॉडर्न थिंग्स डाली। तो जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते चले गए वैसे वैसे लास्ट में आते हुए इन द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द कॉटन इंडस्ट्रीज ऑल्सो एक्सेप्ट द न्यू टेक्निक्स इन देयर फील्ड। Okay, the technology changes occupied slowly, they did not spread largely across the country. जो अपनी टेक्निक्स थी बेटा, जो स्लोली क्या कर रही थी, एंट्री कर रही थी, स्लोली पर्सन क्या कर रहे थे, चेंज हो रही थी। ठीक है, इन्वेंशन भी क्या हो रही थी, इन्वेंशन भी बेटा बहुत आराम से जो इन्वेंटर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनकी इन्वेंशन का यूज कर रहे थे। जो प्रॉफिटेबल थी वो भी क्या नहीं, जो प्रॉफिटेबल थी उसको भी लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। बट इन द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द स्टीम इंजन केम। स्टीम इंजन, भाप का इंजन आया बच्चा, और उससे क्या कंप्लीट इंडस्ट्री क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, जो बेटा उससे स्टीम इंजन से, स्टीम इंजन फर्स्ट टाइम देखो, पहले हम अपना हैंड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या आ गया, इंजन आ गए, स्टीम्स के इंजन आ गए। तो उससे क्या हुआ बच्चा, जो लेबर थी उसका प्रेशर कम हो गया। ठीक है, merchants and industrialists were cautious about using new expensive technologies. James Watt,
Who was the James Watt बेटा? That is very important name for you. James Watt कौन थे? James Watt जिसने आपकी स्टीम इंजन को इन्वेंट किया. James Watt. Who was the James Watt बेटा? Who invent the steam engine? जिसने फर्स्ट टाइम पे स्टीम इंजन को इन्वेंट किया. ठीक है. When in 1789 James Watt invent the steam engine in the 1789. अब क्या है 1789 में क्या हुआ बेटा? जब 1789 में आपका स्टीम इंजन का इन्वेंट कर लिया गया, उसके बाद कंप्लीट सिचुएशन क्या हो गई? चेंज हो गई. ठीक है. Matthew Boulton manufactured the new model of the steam engine, but it was not easily accepted by the industrialists. At the beginning of the 19th century, there were only 321 steam engines all over the England. How many steam engines were in the England in 19th century? Only the 321 steam engines were present in the complete England. Okay, and Matthew Boulton. Matthew Boulton. ठीक है. मैथ्यू बोल्टन कौन थे बेटा? जिन्होंने स्टीम इंजन को एक नए तरीके से उसमें कुछ चेंजेस करके एक न्यू इन्वेंट की. ठीक है. मतलब स्टीम इंजन ही थी, लेकिन उसका एक न्यू मॉडल आपके सामने क्या किया? इन्वेंट किया. ठीक है. तो यहां से आपको क्या क्लियर होता है बेटा? दैट जेम्स वॉट द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन इन द 1781. आफ्टर दैट मैथ्यू बोल्टन who invent the new model of the steam engine, but at that time the England people were not ready to adopt these types of steam engine for their industries. Okay बच्चा, clear to everyone? Clear to everyone this बेटा? तो ये क्या था आपका? ये आपका था ये point that द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. सबसे बड़ा चेंज क्या आया इंडस्ट्रीज में कि अब जो हैंड जो वर्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंजन्स में. टेक्निक्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा, इंजन्स के द्वारा अब हमने अपना काम करना शुरू कर दिया. तो वो स्टार्टिंग कब हुई थी? इन द 1781. ओके. एंड वेयर? इन द इंग्लैंड. कंप्लीट क्लियर टू एवरीवन बच्चा? Till now, if any type of query in this chapter, then you can ask to me, and after that we will continue our topic, that is hand labor and the steam engine. कैसे जो हाथ के कारीगर थे उनका जगह, जो हाथ से काम किया जाता था, उनकी जगह किसने ले ली? स्टीम इंजन ने ले ली. ओके बच्चा? Till now, if any type of query to you, then you can comment to me. Okay?